Is it visible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So one more thing, I'll be teaching you the complete syllabus, both sections, right? For section C, there is one teacher, another teacher is also allotted, Dr. Rakesh. So he'll be taking your assignments, matlab, he'll be checking your assignment, I'll be giving you the question. So that we need to figure it out how you're going to do that. Matlab, I'll give you the question, you will submit it to him. I'll share his ID. So, but for now, I'll be teaching you the both section, the complete syllabus, right? So now we are moving towards pricing component of our marketing mix or the pricing unit of our syllabus. So as we all know that pricing is the only function which generate profits for the company. Otherwise, other than pricing, each and every function or each and every P is brings only expenses for the company. Like product, company has to invest, promotion, company has to invest, distribution, company has to invest, packaging, company has to invest. People, that means they want to employ, they have to employ the people, that means company has to invest. Pricing is the only thing which will fetch some kind of revenue to the company. But at the same time, if pricing is not done correctly, it may also destroy the company, uh, including whatever good product a company can offer is offering, whatever different product a company is offering, whatever good employees it is having. Customers are not okay with the pricing thing of the company, so that means companies are not going to earn profits, right? So pricing is that is very important. Like each other function, like any other function, pricing is also having its importance. Now we know that whenever a company is offering something, definitely it has some kind of tag. So I just want to make clear what is pricing actually means. Does pricing means only the money thing, or customer thinks price in any other what you will say, any other context also? Whenever you are weighing any product, whether you need to buy it or not, so does customer only in terms of monetary value, or there are other consideration factors in the mind of customer also? I want to ask that. So would anybody like to say something on that? Have you understood my question? I am saying, when we decide on buying a product, so is it only price matters to us? That means in terms of monetary thing, or other thing we also take into consideration? I'm just want to ask that. Nobody's answering me. Nobody's saying anything. Right? So, hmm? Come on. Are you there or not? Are you there or not? Yes, ma'am. Has anyone heard my question, or all have just entered and went away, or doing their other things? Please let me know. What are you doing there? So in that case, what I will do, I'll stop showing the PPTs and I will make sure that you will open your cameras, and only then I'll teach. Will it be fine with you people? In that case, I would be able to see what you are doing. And whosoever will not on her camera, I'll not mark attendance. So do you want that kind of thing? So please let me know. Decide among yourselves and let me know. I'm okay with both ways. You're not even answering. You're not saying even yes or no. See, it's a difficult situation for everyone. It's a new thing for everyone. Please try to understand this thing and behave like senior most class in the college. No? Still no response from anyone. At least you say we don't understand the question. You will say something, na?
come on guys, कहाँ हो सब? Ma'am, people are replying in the chat. Sorry, one by one. You are listening, but you are not responding. Ma'am, we are responding in comment box. बेटा जब मेरा प्रेजेंटेशन ऑन होता है तो मैं कमेंट बॉक्स नहीं देख सकती हूँ. यू हैव टू अंडरस्टैंड, है ना? जब मैं शेयर स्क्रीन पे होती हूँ मैं चैट्स नहीं देख सकती हूँ. सो यू हैव टू स्पीक बेटा. You have to understand that basic thing, no? Right? So when I'm showing the presentation, please say something by unmuting yourself. That's okay with everyone? Okay. Yes. Okay. So anyone can take a lead and can answer this question, that whenever we are evaluating some product, whether we need to buy that product or not, do we think only price or we think or consider other factors also? Quality of the product. Maybe that means you are saying that we think other factors also, है ना? क्वालिटी के अलावा और क्या रहता है? Reviews. अच्छा देखिए, आपको देख रहे हो जैसे मान लीजिए एक ही प्रोडक्ट है, उसके अलग अलग जगह कई बार ऐसा भी होता है कि प्राइसेस अलग अलग मिल रहे होते हैं. इन दैट सिनेरियो व्हाट डू यू थिंक? फॉर एग्जांपल एक पेन है, राइट? एक एग्जांपल शो कर रहे हैं मैं, ध्यान से सुनिए. एक पेन है, आप एक होलसेलर के पास जाते हैं, वो आपको 20 रुपीज का मिलता है, राइट? और थोड़ी आपके घर से दूर है शॉप, राइट? एक आपके घर के पास शॉप है, वहां भी पेन मिलता है, वहां आपको 25 रुपए का मिलता है, एंड यू नो दैट ये पेन एक्सपेंसिव मिल रहा है यहाँ पर, बट यू पेन इज सेम, बिल्कुल सब कुछ सेम है, बट ऐसा होता है ना, यू नो दैट थिंग, इट हैपेंस. अमेजोन पे वो पेन आपको लेट से 19 रुपए का मिल रहा है या 22 रुपए का मिल रहा है, कोई भी एक फिगर ले लीजिए, राइट? पेन इज अगेन सेम. ओके, आपका कल एग्जाम है, राइट, जिसके लिए आपको पेन चाहिए. सो इन दैट सिचुएशन आप कैसे डिसाइड करोगे कि मुझे कहाँ से लेना और कौन सा डिसाइड करोगे? एनीवन, एनी 2 or 3 स्टूडेंट्स कैन सी. जब हम इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, सिचुएशनल क्वेश्चंस, देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर. इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन एवरी पर्सन. कंटेक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं. सो व्हाटएवर यू आंसर, यू शुड हैव सम रीजन अबाउट दैट, कि आप ये क्यों सोचते हो. और somebody should not be feel judgmental about those things, because it's their own perception or the way of taking decision. So nobody should comment on that. So feel free, because I really want to have discussion mode of classes rather than just saying I'm just talking and you are just listening. That will never make a lecture effective, right? So you please contribute and you please say whatever you want to say in this regard. So anyone can start. Come on. Ma'am, I will get that pen from the nearby shop because there is a sense of emergency and tomorrow is my exam. So I will not consider the money here and nearby shop. Okay. Yeah. Okay. Any other with different view? Any other with different view? No. Yes, sir. Okay. Let's leave that constraint. कल आपका पेपर नहीं है. Then कल आपका एग्जाम नहीं है, आपको पेन चाहिए. मैम, दूर वाली शॉप पे जाके फिर कभी भी आते जाते वहां से ले लेंगे. होलसेल वाली शॉप. ओके. कोई और? Ma'am, it depends upon the condition. I think it's somewhere depend. Ma'am, I think it is depend if I'm having time to reach that place or not. For example, if I'm going somewhere and उसी रास्ते में वो शॉप पड़ती है, तो मैं दूर से ले लूंगा. अगर मेरे को वहां जाना होगा, मतलब और कोई रीजन भी होता है वहां जाने का, अदरवाइज इतना दूर जाके वो पेन लेने, सिर्फ पेन के लिए इतना दूर जाना. मे बी आई विल नॉट मेक अ ट्रिप, राइट? अगर मुझे लगता है कि मैं उस एरिया में जाता हूँ, आई कैन फेच दैट पेन, दैट मीन्स यू आर टेकिंग ट्रेवलिंग कॉस्ट इनटू द माइंड, कि भी जाना भी तो पड़ेगा. इट विल आल्सो हैव सम काइंड ऑफ एक्सपेंस ना. समझ लो. अगर सीपी में जाकर वो शॉप मिल रही है मुझे और सीपी तक जाऊंगी, तो व्हाट आई विल थिंक, अरे इतना तो आने जाने में टाइम और पैसा ही लग जाएगा. एग्जैक्टली. अगर मैं सीपी में कुछ और शॉपिंग करने जा रही हूँ एंड आई नो दैट इस शॉप पे पेन सस्ता मिलता है, देन आई मे टेक दैट. Yes, ma'am. Right? But just for getting that pen, I may not choose to go. But at the same time, if it is not a pen, if it is a phone, and आपको difference नजर आ रहा है 6-7 हजार रुपए का, then definitely we can go specially to the
other shop. And what about that online thing which I discussed? वो तो किसी ने बताया ही नहीं मुझे. Online को नहीं explore करोगे आप लोग? हम करेंगे. तो उसमें क्या देखोगे आप? किस तरह से evaluate करते हो? हमकी सबसे ज्यादा सेल कहाँ चल रही है वो डिपेंड करता है ना प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. नहीं, मान लो ये एग्जांपल मैंने आपको पेन वाला दिया, जैसे लेट्स से 22 रुपए का मिल रहा था ऑनलाइन, 20 रुपए का मिल रहा था होलसेल जो थोड़ा दूर है आपके घर से, और 25 रुपए का मिल रहा था आपको घर के पास, राइट? तो अगर आपने होलसेल वाला तो हमारा दूर हो गया क्योंकि वो इतनी दूर जाएंगे और आने जाने में मनी खर्च होगा. बट अबाउट दैट ऑनलाइन थिंग, वहां पर क्या चेक करके हम इवेलुएट करते हैं, कैसे इवेलुएट करते हैं? हम पेन जैसे प्रोडक्ट में तो ऑनलाइन शायद ना ही करें क्योंकि अगर 3-4 रुपए का फर्क है तो जाके ले ही आएंगे फिर अपने क्लोज मार्केट वगैरह से, क्योंकि पेन ऐसी चीज है जो अभी चाहिए होगी ना मेरे को, अगर मेरे को चाहिए तो अब मैं 2 दिन या 1 दिन कैसे Ma'am, wait करूं? exactly. It is somewhere depend upon the time foundation. If I'm not bounded with time, I can think that I have to not मुझे मतलब जाना नहीं पड़ेगा. It's better मैं ऑनलाइन भी कर सकता हूँ अपने ज्यादा चाहिए. If we can wait for 2-3 days, we can explore that. But other than that भी कुछ फैक्टर होंगे, आप वो मिस कर रहे हो. सोचो. क्वालिटी नहीं, सेम पेन है बिल्कुल. मैम हम जनरली पेन चला के भी देख लेते हैं, ये मतलब उसे यूज करके देख सकते हैं ये वर्किंग है या नहीं. वेरी गुड. एक तो ये चीज हुई, तो लेकिन हम सीओडी की भी तो हम कई बार करते हैं पर उसमें वो यूज नहीं करने देते हैं. बट आई डोंट नो पेन्स के एक मामले में ये चीज आई है कि नहीं है. जैसे कपड़े हम ट्राई करके देख लेते हैं, जूते हम ट्राई करके देख लेते हैं, एंड देन वी कैन रिटर्न इट बैक. तो पेन्स के केस में ये चीज अवेलेबल हुई है, स्टेशनरी में ये हुई है नहीं हुई, आई डोंट नो बिकॉज आई डोंट बाय ऑनलाइन. सो यू कैन बेटर टेल मी कि क्या स्टेशनरी के केस में ऐसी अवेलेबिलिटी है कि हम पेन चला के देख लें, इफ वी डोंट लाइक इट वी कैन रिटर्न इट. मेरे ख्याल तो नहीं होगी वैसे. नहीं होगी ना? आई थिंक स्टेशनरी में भी उन्होंने ये इंट्रोड्यूस नहीं किया है ना. इसके अलावा भी एक फैक्टर है. इसके अलावा सोचो. ऑनलाइन शॉपिंग करते हो इसीलिए ज्यादा ग्रिल कर रही हो. सोचो, बिकॉज जब तक आप चीजों को थिंक नहीं करोगे तब तक हम किसी भी चीज को नेचुरल तरीके से नहीं लिख पाएंगे. यू नो, आई डोंट वांट कि मार्केटिंग का पेपर तुम पढ़कर देकर आओ. अगर मार्केटिंग सच में पढ़नी पड़ेगी तो सिर्फ इतना कि इस कंसेप्ट का नाम क्या था, इसके पॉइंट्स क्या थे 2-4 मील में, इसके अंदर क्या लिखा है. आई रियली डोंट वांट यू पीपल कि तुम उसे कभी लर्न करने की जरूरत पड़े. इट शुड बी coming to you naturally. So that's why I'm spending this much time on this particular discussion. Shipment charges. हाँ जी. Want to see that? Price कम, क्या shipment charges तो नहीं लग रहे ऊपर से? क्योंकि अगर shipment लग गए तो 25 का पेन हो सकता है तुम्हें 27 का मिल जाए. फिर पड़े. नहीं, फिर तो सीधा 25 से 30 रुपए जुड़ेगा क्योंकि 100 रुपए से हो जाएगा. बेटा मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. वो तो ठीक है, आज वो है, कल कुछ और भी तो हो सकती है शिपमेंट. हाँ जी. है ना. मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको कि वो ज्यादा हो सकता है 25 से, राइट? सो वी कैन थिंक, वी शुड थिंक दैट वे ऑल्सो, राइट? सो एक प्राइसिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं एग्जैक्ट. आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन ना? यस मैम. यस. तो प्राइस क्या होता है? प्राइस इज द ओवरऑल सेक्रीफाइस, नॉट ओनली मॉनेटरी, ओवरऑल. जैसे आपका टाइम, एनर्जी, सारे सेक्रीफाइस को मिलाकर ओवरऑल सेक्रीफाइस अ कंज्यूमर इज विलिंग टू मेक. हमारी विलनेस होनी चाहिए, मतलब कोई हमारे पास कंपल्शन है कि अब करना तो यही पड़ेगा. मतलब वो जो भी सेक्रीफाइस है वो हमें, वी आर विलिंग टू मेक टू एक्वायर द स्पेसिफिक आइटम, but it also may involve other sacrifices, whether non-monetary, like the value of the time necessary to acquire the product or service. जैसे हमने कहा हमें सीपी जाना पड़े, टाइम जाएगा, ठीक है. और इवन और मॉनेटरी लाइक ट्रेवल कोस्ट, टैक्सेस, जैसे मैंने कहा शिपिंग कोस्ट. जैसे अगर एडिशनल आपको लग रहा है कि अच्छा यहाँ पे लेट से बिना बिल के कोई दे देता है तो आपको लगता है कि चल मैं यहाँ से ले लेता हूँ, 25 का दे रहा है, पर आप बाहर जाओगे कहोगे अरे तो पक्का बिल काट के देगा, और आपके दिमाग में ये हो कि अरे पक्के बिल से बढ़ जाएगा कोस्ट, मुझे नहीं लेना बिल वाला. सो डिफरेंट कंसिडरेशन कुड बी इन फॉर एनी पर्सन. सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि कस्टमर ऐसे बिहेव करेगा. दैट्स व्हाई वी स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर व्हिच इज वेरी डायनामिक. वी डोंट नो एक्चुअली, इवन समटाइम्स वी आल्सो ourselves don't know how we are going to behave, right? And so forth, all of which the buyer must give up to take the possession of the product. ये सारा का सारा अल्टीमेटली
हमें अपनी पोजेशन लेने के लिए प्रोडक्ट के लिए हम कितना सेक्रीफाइस करने को तैयार है, इंक्लूडिंग मॉनिटरी एज वेल एज नॉन मॉनिटरी, वो एक्चुअल में कलेक्टिवली प्राइस कहलाता है, राइट? दैट इज नोन एज प्राइसिंग। ना जब हम प्राइस की बात करते हैं तो जब कोई भी फर्म एक प्राइस डिसाइड करने की बात करती है तो फर्म दिमाग में क्या क्या चीजें रखती है, मतलब हम ये फर्म के एंगल से सोच रहे हैं, कस्टमर के एंगल से नहीं देख रहे हैं। जो हमें मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है ये हम एक रिटेलर और एक मार्केटर के एंगल से पढ़ रहे हैं। सो वाइल डिसाइडिंग पूरे प्राइसेस, जो ये पीछे चीजें थी, जो डेफिनेशन में चीजें थी, ये एक कस्टमर के एंगल से थी कि जब वो इवेलुएट करता है किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस को, वो क्या चीजें इवेलुएट करता है। बट अब हम जो प्राइस कह रहे हैं आपको, ये जो कंपोनेंट्स हैं, दीज कंपोनेंट्स आर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ रिटेलर, दैट हाउ ही डिसाइड्स कि मुझे अपना ये प्राइस रखना है। तो 4 बेसिक फैक्टर क्या होंगे? पहला है उसका, इनको बोलते हैं 5 C's ऑल्सो, राइट? 5 C's ऑफ प्राइसिंग। तो पहला फैक्टर है कंपनी के ऑब्जेक्टिव। नाउ एक कंपनी किस ऑब्जेक्टिव से उस बिजनेस में एंटर करी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट इज प्रॉफिट ओरिएंटेशन। Of course, we can say that companies are there for earning some kind of profit, but again, we know that there is another concept in our professions or business industry, that is non-profit organizations. ठीक है? So we need to see that हमारी जो है वो non-profit, जैसे educational institute, जैसे हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है जिसमें आप पढ़ते हैं, we don't seek profit from you people, rather आपको सब्सिडाइज्ड एजुकेशन मिलती है फ्रॉम गवर्नमेंट। हम अपनी किसी भी एक्टिविटी से, कॉलेज ये नहीं सोचते है कि बच्चों को ये दे दे और इससे हम प्रॉफिट अर्न करें। आर यू गेटिंग इट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कैंटीन में भी कुछ खाने को मिलता है तो कॉलेज का कोई परसेंटेज सेट नहीं है कि हर महीने कैंटीन वाला कॉलेज को इतना सबमिट करेगा। नो, इट्स नॉट देयर। अगर आप लाइब्रेरी से बुक कुछ लेते हैं किसी वेंडर से, हमारा जो शॉपकीपर है उससे भी हमारा एज सच कुछ सेट नहीं है चीजें कि इतना जितनी भी बुक्स बिकेंगी उसमें। ऑफ कोर्स वी टेक अ रेंट of the place which we have given him for setting up the shop, but we don't charge him कि तुम इतना काम करते हो तो तुम हमें ये करमा के दोगे। It's not any kind of deal. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ किस तरह से स्कूल्स डील करते हैं। हालांकि स्कूल्स को हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मानते हैं, पर क्योंकि हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो कहने के लिए एनजीओज हैं, बट कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्न करते हैं। मैं आपको एक बड़ा एग्जाम्पल देती हूँ। आपने देखा होगा कि जब स्कूल्स की पीटीएम्स होती है तो वहां पर बुक शॉप्स वाले, स्पेशली स्कॉलिस्टिक्स वाले, अपना बाहर कियोस्क लगा लेते हैं, किताबें बेचते हैं। देखा है आप लोगों ने कभी कि स्कूल से अभी पास आउट हुए आपके कभी छोटे भाई बहन की पीटीएम में गए हो? सो यू मस्ट हैव सीन दैट। नाउ व्हाट दे डू, हम लोग किताबें खरीदते हैं, पेरेंट्स अलग अलग किताबें खरीदते हैं, काफी बच्चे किताबें खरीदते हैं, तो उसके बेसिस पर कुछ पॉइंट्स जनरेट होते हैं, बोनस पॉइंट्स, और उन बोनस पॉइंट्स के इक्विवेलेंट वो स्कॉलिस्टिक वाले कॉलेज स्कूल की लाइब्रेरी में किताबें देते हैं। सो दैट मीन्स स्कूल इज गेटिंग सम प्राइस, सम बुक्स, कि वो हमें उनको अलाउड किया तो उनके रेवेन्यू में से इस तरीके से, नॉट बाय टेकिंग इन मनी, बट उन्होंने अपनी लाइब्रेरी फेच करा ली और उधर से हमसे लाइब्रेरी फीस तो ले ही रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स। आर यू गेटिंग इट? हालांकि वो कहने के लिए नॉन प्रॉफिट है, बट आप अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्रॉफिट ओरिएंटेशन होता है, कम ज्यादा हो सकता है। वो ये नहीं दिखाते हैं कि इस प्रोडक्ट पे मेरा इतना मार्कअप है, लाइक कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ये नहीं दिखाते हैं, या हॉस्पिटल ये नहीं दिखाते हैं। इनको हम क्यों नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं? क्योंकि ये नहीं कहते हैं कि एक पेशेंट के ऊपर मैंने इतना कमाना है। दे डोंट से इट लाइक दिस कि मेरा इसमें इतना मार्जिन है। दे डोंट से इट लाइक दिस। वटएवर एक पेशेंट से चार्ज करते हैं वो ये देते हैं कि अच्छा डॉक्टर की कंसल्टेशन इतनी है, रूम आप रह रहे हो इसका रेंट इतना है, ये है। वो इस तरीके से इस चीज को फॉर्म करते हैं। ये नहीं कहते कि मेरी चीज ये 10 रुपए की बनी थी, मैं इसमें से 2 रुपए आपसे कमा रहा हूँ एंड आई एम आस्किंग यू, चार्जिंग यू 12 रुपीज, जैसे हम लैपटॉप के केस में, मोबाइल के केस में, एसी के केस में ले लेते हैं। इसीलिए इसी सिमिलर वे में जब एक स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो ये नहीं होता कि पर बच्चा मेरा इतना प्रॉफिट होगा। मतलब बैक ऑफ माइंड हो सकती है उनकी एक रफ कैलकुलेशन चलती होगी, बट इट इज नॉट दैट वे विजिबल कि एक बच्चे के ऊपर इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं वो लोग। इस तरह की कैलकुलेशंस ना उनके अकाउंट्स बनते हैं इस तरीके से पर यूनिट के हिसाब से, इसलिए इनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, और इसलिए इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज और अकाउंट्स भी बिल्कुल अलग होते हैं, राइट? तो प्रॉफिट ओरिएंटेशन, हम यहाँ पे नॉर्मल कंपनीज की बात कर रहे हैं जो इस तरह के गुड्स में डील करते हैं, जिनको हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। तो वो इस तरह की चीजें देखते हैं कि हमें कितना टारगेट रिटर्न लेना है, हमें कितना प्रॉफिट कमाना है। और स्पेशली जो फोन्स और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड
कंपनीज हैं, उनकी हमेशा इंटेंशन ये रहेगी, प्रॉफिट ओरिएंटेशन रहेगी कि द मोमेंट दे एंटर इनटू द मार्केट, वो कोई नई चीज लेकर आते हैं, वो बिल्कुल ये इस आते हैं कि हमें फटाफट अपनी कॉस्ट रिकवर करनी है, R&D की, बाकी देखेंगे बाद में, बिकॉज द मोमेंट कंपिटिटर विल कम, तो आपका ओरिएंटेशन प्रॉफिट से ज्यादा कॉम्पिटिटर पे हो जाएगा। आज के टाइम में जो OTT की मार्केट है वो कंपटीशन ओरिएंटेशन हो चुका है, उसके अंदर एक से एक ज्यादा कितनी तो मैक्स प्लेयर, सोनी लिव तो फ्री ही है, कुछ तो फ्री है और कुछ आपकी पेड है। अब जो पेड है वो आपको कुछ एडिशनल एडवांटेज देने की कोशिश करती है, जैसे आपको मल्टी स्क्रीन देखने का एक मौका देती है, या आपको कुछ और लुक्रेटिव ऑफर देगी, या उनका कंटेंट कुछ इस तरह का होगा कि दे वांट टू प्ले ऑन दैट। तो कंपिटिटर ओरिएंटेशन आ जाता है, तो वहां पर चीजें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। प्रॉफिट ओरिएंटेशन ये कि जब तक खाली नेटफ्लिक्स था, बहुत सारे नहीं थे, या डिज्नी हॉटस्टार जब आया बहुत सारे कॉम्पिटिटर नहीं थे, तो उनका प्रॉफिट ओरिएंटेशन था। या जब मोबाइल्स आए, या पहले रिलायंस के आने से पहले एयरटेल का प्रॉफिट ओरिएंटेशन था, उसकी सर्विसेज अच्छी थी तो वो प्रॉफिट ओरिएंटेशन पे था। द मोमेंट जियो एंटर, सारे के सारे मोबाइल टेलीफोनी वाले कंपटीशन ओरिएंटेशन के ऊपर आ गए, राइट। और तीसरी चीज होती है कस्टमर ओरिएंटेशन। कस्टमर ओरिएंटेशन का मतलब ये कि हम अपने को कंपटीशन का हिस्सा मानते नहीं। फॉर एग्जाम्पल एज एप्पल सेज कि हमें अपने कस्टमर को लाइफ इजी करनी है, कंफर्टेबल करनी है, स्टाइल देनी है, हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है। दो वी अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर स्ट्रेटजीज दैट दे आर डिनाइंग दोस थिंग्स, बट इट इज समथिंग बैक ऑफ देयर माइंड, बट स्टिल अगर हम मोटी मोटी चीजें देखें कि वो कभी कंपटीटर के हिसाब से अपने प्रोडक्ट का पैसा सेट नहीं करते हैं, वो अपने कस्टमर की स्टाइल स्टेटमेंट और उसके साथ वो ब्रांड वैल्यू और वो लग्जूरियस आइटम का टैग रखने के लिए वो कस्टमर ओरिएंटेशन रखते हैं। अगर आप रेडो के शोरूम पे जाएं, जिस तरह का आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, एम्बियंस मिलेगा, जो सर्विसेज मिलेंगी, वो आपको टाइटन के शोरूम पे नहीं मिलेगी, राइट। क्योंकि टाइटन कंपटीटर ओरिएंटेशन है, एक सेगमेंट में वो compete करता है। रेडो या इस तरह की और आप कोई हाई एंड ओमेगा या किसी और हाई एंड में जाए, ऑफ कोर्स दे compete, बट दे डोंट शो इट। इसको अपनी मेन स्ट्रेटेजी नहीं बनाते हैं, वो अपने आप को अपने कस्टमर पे ओरिएंट करते हैं। जैसे पोर्श की कारें हैं या कोई और चीज है, उनका कस्टमर ओरिएंटेशन है कि हमारा कस्टमर खुश रहे। हम उनका जो यूनिट है वो अपने कस्टमर से है, बिकॉज दे टारगेट वेरी स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द मार्केट। नाउ सेकंड इज कस्टमर्स। अब आपको ये भी देखना है कि क्योंकि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स कभी ना कभी पढ़ा हुआ है, हैव यू एवर स्टडीड इकोनॉमिक्स? यस और नो? मतलब इलास्टिसिटी का आप लोगों को पता है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हम लोगों ने पढ़ी है कि अलग अलग तरह की इलास्टिसिटीज होती है, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी होता है, और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी भी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जिस भी प्रोडक्ट में डील करते हैं, वी ऑल्सो नीड टू सी कि वट एवर गुड वी आर सेलिंग, क्या इसमें इलास्टिसिटीज की कितनी गुंजाइश है। प्राइस इलास्टिसिटी मतलब क्या अगर मैं चीज महंगी कर दूंगी तो लोग नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में डेटा कितना भी महंगा कर दे सारी कंपनीज, इट्स अ रिक्वायरमेंट कि हमें इंटरनेट लगवाने, तो प्राइस इलास्टिसिटी वहां पर कम हो गई है। आर यू गेटिंग इट? पेट्रोल, मेट्रो की टिकट हमें पिंच तो करेगा, इट्स नॉट दैट कि हमें पिंच नहीं करेगा, बट प्राइस को लेकर हम सेंसिटिव कम होते हैं। लेकिन गोल्ड जो होता है उसकी इलास्टिसिटी प्राइस की थोड़ी ज्यादा होती है, राइट। ऑफ कोर्स जिन्होंने इन्वेस्ट करना है उन्होंने तो उसको कमोडिटी अलग हो गई, पर जिन्होंने कंज्यूम करना होता है दे मे नॉट थिंक ऑफ बाइंग द गोल्ड, बिकॉज गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो वहां पर इलास्टिसिटी एक मैटर करने की बात होती है। आपने देखा होगा प्राइस हो गया है, तो तनिष्क हैव कम विद न्यू काइंड ऑफ ज्वेलरी, जिसमें बहुत लाइट वेट ज्वेलरी वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। क्योंकि उन्हें पता है कि अब प्राइस कॉन्शियस आइटम है, तो लोग बहुत हैवी ज्वेलरी नहीं खरीद पाएंगे, नॉट मेनी कस्टमर विल बी एबल टू बाय दैट, तो प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम इफेक्ट मतलब लोगों की जनरल इनकम क्या आ रही है और उसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है। अभी गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लगाई है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, कौन सी स्कीम है? जीएसटी एलटीसी के ऊपर, किसी को आइडिया है? कुछ पता है आप लोगों को? एक एलटीसी का नया वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो बाहर जाके खर्च करें एलटीसी के अंदर, और काफी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनको एलटीसी मिलता है। अब इस साल ट्रैवल है नहीं, और हम इंडिया में आपको पता है हम लोगों की जीडीपी बांग्लादेश से भी नीचे चली गई है, यू नो दैट? ओके, Yes, ma'am, we know. बांग्लादेश से भी नीचे चले गए। नाउ इट हैज बिकम अ लिटिल काइंड ऑफ ऑकवर्ड सिचुएशन फॉर इंडियन गवर्नमेंट कि वो छोटा सा कंट्री भी हमसे आगे है।
right? And we were thinking of 5 billion economy, right? Anyhow, अब गवर्नमेंट ने अपनी स्लगिश डिमांड को अप करने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के सामने एक बेट डाला है कि आपकी जितना भी आप खर्च करेंगे अपने एलटीसी क्लेम का, और जितना खर्च करेंगे 12% जीएसटी से ज्यादा, वो आइटम जो 12% जीएसटी से ज्यादा अट्रैक्ट करती हो, मतलब, और आप वो आइटम खरीदेंगे तो उसका 1/3 आपको रिकवर हो जाएगा, मतलब गवर्नमेंट आपको पैसे दे देगी और वो हम आपका एलटीसी का क्लेम समझ लेंगे। हम ये समझेंगे आप घूम आए, जैसे हम लोगों को टिकट्स का मिलता है, एयर टिकट्स का मिलता है, या हर किसी को अलग अलग मिलता है, राइट? तो अब ये क्या है, ये एक स्लगिश डिमांड को थोड़ा मार्केट को घुमाने के लिए कि लोग बेसिक आइटम तो खरीद रहे हैं, लेकिन अब लोग थोड़ा सा लग्जूरियस चीजों पे खर्च कम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से सारी इकोनॉमी को एक बार रोक दिया है, तो उस चक्के को चलने के लिए समय लगता है। तो उन ये छोटे छोटे मेजर्स लिए जा रहे हैं कि चलो इस तरीके से ही हम उस चीज को थोड़ा डिमांड को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो इनकम इफेक्ट है कि जब पे कमीशन आता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ती है, तो उस वक्त बड़ी एड्स आनी शुरू हो जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के घर पे, बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स और इन सब की, अगर, क्योंकि आजकल डेटा तो सबका इकट्ठा हुआ है कि आप कहाँ काम करते हैं, कहाँ काम नहीं करते हैं, तो वो कंपनीज देख लेती है कि अच्छा इनकी सैलरी बढ़ रही है, पे कमीशन लग गया है, ओके अब यहाँ पर पैम्फलेट भेजने शुरू करो। तो इनकम इफेक्ट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, कि अगर आप इनकम बढ़ रही है तो आप उस चीजों को खरीदेंगे, और उस मतलब आपकी प्रोडक्ट उस कैटेगरी में आता है कि क्या इनकम इंक्रीज होने से पीपल बाय दोज प्रोडक्ट, या कहाँ पर आपका प्रोडक्ट फॉल करता है। देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके प्रोडक्ट के कितने क्लोज सब्स्टिट्यूशन है, क्या कोई प्रोडक्ट का 100% सब्स्टिट्यूशन भी है, तो दैट वी नीड टू सी। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मोबाइल डेटा की बात करें, अगर जियो और एयरटेल दोनों की एक स्पीड है और बिल्कुल अच्छे से चलता है और दोनों एक एरिया में दोनों चलते हैं, तो देयर इज 100% सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, राइट? अगर मैं पार्ले जी खा रही हूँ तो उसका टाइगर है वो ऑलमोस्ट काफी क्लोज सब्स्टिट्यूशन है उसका, ब्रिटानिया का मैरी है या आईटीसी का मैरी है, काफी क्लोज सब्स्टिट्यूशन है। तो सब्स्टिट्यूशन में भी रेंजेस होती हैं कि कितना क्लोज है और ब्रांड कितनी मैटर कर रही है और कितनी नहीं कर रही है। देन उसके बाद आपका होता है कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब एक जो चीज होती है उसके और भी मतलब बेसिकली एक अगर डिमांड हो रहा है तो प्रोडक्ट बी उसके डिमांड में इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। फॉर एग्जांपल कारों की डिमांड बढ़ रही है तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी, राइट? ये क्रॉस इलास्टिसिटी हो गई। अगर हम इंटरनेट बढ़ा रहे हैं तो बिजली की डिमांड अपने आप इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि वो उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए, राइट? मोबाइल का बिल अपने आप बढ़ जाएगा अगर हमारा इंटरनेट बढ़ रहा है, राइट? तो ये सारी चीजें क्रॉस प्राइस है, मतलब या तो एक चीज आने से दूसरी की कम हो जाती है या एक आने से दूसरी की ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोबाइल डेटा का ज्यादा यूज कर रहे हैं तो हो सकता है लोगों ने टाटा स्काई बहुत हटवा दिया, तो यहाँ पर नेगेटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी हो गई कि उनकी मार्केट खत्म हो गई डीटीएच वालों की, जब से ये स्मार्ट टीवीज आए और अमेजोन फायर स्टिक आई, तो यहाँ पर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब इंटरनेट की डिमांड बढ़ गई और डिमांड किसकी घट गई, डीटीएच की। तो ये सारे इफेक्ट आपको देखने पड़ते हैं एज ए मार्केटर कि हम कौन सी कैटेगरी में हमारा प्रोडक्ट आता है, उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना पड़ेगा, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी कितना पड़ेगा, इनकम कितना पड़ेगा और प्राइस का कितना पड़ेगा। नाउ थर्ड सी इज कॉस्ट। आपको पता है कि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट क्या होते हैं, यू ऑल नो दैट वेरी वेल। तो हमें ये देखना होता है कि वट एवर गुड वी आर मेकिंग, वेरिएबल कॉस्ट कितना है उसका और फिक्स्ड कॉस्ट कितना है। अच्छा, ये न्यूज कितनों को पता है कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था मार्च अप्रैल में, एट दैट टाइम रशिया अमेरिका की एक कंपनी थी विच वाज सेलिंग पेट्रोल एट ए नेगेटिव प्राइस। यस मैम, मुझे पता है ना, दैट मीन्स पेट्रोल भी ले लो और पैसे भी ले लो। सो उसका मतलब क्या हुआ, उस पर्टिकुलर आइटम में फिक्स कॉस्ट ज्यादा था या वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा था, इसका मतलब क्या था, क्या लगता है? वो तो मार्केट फैक्टर्स की वजह से हुआ था ना। नहीं, आप जैसे ज्यादा काम बंद कर दोगे ना बेटा, आप ऐसे कौन सी आइटम होती है कि आपको चीज भी ले जा और पैसे भी ले जा, पर ले जा, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी उसकी, अगर आप देखोगे पूरी स्टोरी है। प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बिल्कुल ठीक बात है आपकी।
कौन सी कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व रही होगी इसलिए वो ऐसा कर रहे होंगे? फिक्स्ड कॉस्ट। फर्स्ट, वेरी गुड, फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को आप कंट्रोल कर सकते हो अपने प्रोडक्शन को कम करके, भी नहीं लेंगे, काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी चीज की फिक्स्ड कॉस्ट इतनी ज्यादा हो रही है कि उसको रिकवर करने के लिए कम से कम आप लॉस में बेचना शुरू करते हो कि कम से कम कुछ तो पैसे आए, तो उस प्लांट को, पेट्रोल के प्लांट को, ये जो आप इसे निकालते हैं, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन प्लांट्स को बंद करना मतलब वो खराब हो जाएंगे और उसको ठीक करने में ज्यादा पैसा लग जाएगा, रादर देन हम नुकसान पे बेचना शुरू कर दें। नुकसान मतलब हम पैसे देना शुरू कर दें। तो फिक्स कॉस्ट ज्यादा थी उस पर्टिकुलर सिनेरियो में। वेरी गुड। तो एक कंपनी को ये देखना होता है कि हम किस तरह के बिजनेस में डील कर रहे हैं। अगर हम एक होटल चला रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या होंगी और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होंगी, बताओ? फिक्स्ड कॉस्ट होगी जो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। नहीं, वो तो दोनों कंपोनेंट है उसमें, पर कुछ एक पार्ट है। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे टूरिज्म इंडस्ट्री है, होटल्स तो खुले हुए हैं, होटल्स के बाहर ताला तो नहीं लगा हुआ, राइट? तो उनको आज के टाइम में होटल्स को क्या फिक्स कॉस्ट आ रही होगी और क्या वेरिएबल कॉस्ट आ रही होगी? क्या वेरिएबल कॉस्ट बनाता है उनका, एक एग्जांपल देके बताओ, और क्या फिक्स कॉस्ट का कंपोनेंट है? एक होटल है, पूरा फुल फ्लेजेड होटल है जिसमें रूम्स हैं, सब कुछ है, मतलब फंक्शंस हो सकते हैं, सब कुछ है। जस्ट गिव मी वन एग्जांपल कि वहां पर तो अब फिक्स जैसे कॉस्ट यहाँ पे उनके स्टाफ है तो स्टाफ तो होंगे अब, लेकिन अब स्टाफ भी फिक्स हो सकते हैं या वेरी, अगर उसको उनको निकाल दें थोड़े टाइम के लिए नौकरी से। सबको तो नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो जितने कंपलसरी है वो फिक्स्ड कॉस्ट हो गई फिर। हाँ, और इसके अलावा जैसे वेटर्स कम कर सकते हैं, लेकिन मैनेजर या रिसेप्शन पे जो डेस्क पे बैठे हैं वो तो नहीं हटा सकते, सब कुछ खत्म नहीं, जी जी है ना? वेटर्स, हम नंबर ऑफ वेटर्स कम कर सकते हैं, नंबर ऑफ कुक कम कर सकते हैं, जितने अंदर शेफ्स हैं उनका हम नंबर कम कर सकते हैं, राइट? डिलीवरी बॉय अगर हमारे थे वो कम कर सकते हैं, पोर्टर अगर हमारे कुछ थे वो कम कर सकते हैं, राइट? लेकिन माली नहीं हटा सकते, गार्डनर नहीं हटा सकते क्योंकि गार्डन खराब हो जाएगा, राइट? क्लीनिंग वाला नहीं हटा सकते। हाँ। तो और उसमें और फिक्स्ड कॉस्ट और क्या है? जैसे देखिए, लॉबी के अंदर के जो एक्सपेंस होते हैं वो फिक्स्ड में आते हैं, लेकिन जो रूम के अंदर के एक्सपेंस हैं वो किस में आएंगे? वेरिएबल में। वेरिएबल में। उसी कमरे का खर्चा पड़ेगा ना, बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का, क्लीनिंग यूज होगा, लेकिन लॉबी तो रोज यूज होनी है, इररिस्पेक्टिव आपका एक भी गेस्ट है या नहीं है, जी जी। राइट? सो इस तरह के आपको अपने प्रोडक्ट में फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के कंपोनेंट देखने हैं, और फिर हम अपनी एक प्राइसिंग सेट करते हैं कि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है या वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है। डेफिनेटली जिस कंपोनेंट का फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा उसका प्राइस कंपैरेटिवली बहुत कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा, ज्यादा। है ना? क्योंकि हमें वो कवर करनी है। फिर हमें ये भी देखना है, अब हम ऐसे भी नहीं कर सकते कि बहुत ही ज्यादा कर दें, हमें ब्रेक इवन भी देखना होता है। हम ये भी मान के चलते हैं कि अब सारे कस्टमर एक ही दिन में तो आपको फिक्स कॉस्ट कवर नहीं करती, तो वहां पर हम ब्रेक इवन एनालिसिस बनाते हैं कि हमें मार्केट में अपने कंपटीटर के हिसाब से भी प्राइस रखना होता है, सब कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है। तो वहां पर हमें ब्रेक इवन भी सोचना होता है कि हमें कितने टाइम तक, ताकि ब्रेक इवन आपको ये पता चल जाता है तो उसको ये पता चल जाता है एक मार्केटर को कि अब मैं अपनी चीज का प्राइस कितना कवर करूं, स्ट्रेटेजी क्या बनाऊं। अगर मेरा इतना प्राइस रखती हूँ तो मेरा ब्रेक इवन ये आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक नई तरह का फोन बना रही हूँ, ठीक है? उसमें फिक्स्ड कॉस्ट बहुत लग गई मेरी, जैसे R&D वगैरह चली गई, सब कुछ चला गया मेरा। अब ये तो एक तरीके से वो खत्म हो, वो वाली फिक्स्ड कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, वेरिएबल कॉस्ट का हिस्सा तो बनेगा नहीं मेरा, R&D और जो भी कॉस्ट है मेरी, या कोई अलग मशीनरी मंगानी पड़ गई। अब मान लीजिए मैं अपनी प्रोडक्ट का प्राइस कम रखती हूँ, तो मेरे को ये देखना होगा, आई नीड टू चेक दैट ब्रेक इवन कब आ रहा है। अगर वो ब्रेक इवन ही 5 years के बाद आ रहा है, ऑलवेज रिमेंबर मैं टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट लेकर आ रही हूँ, डू यू थिंक दैट 5 साल के बाद आई वुड बी एबल टू गेट सो मच मनी ऑफ दैट पर्टिकुलर मोबाइल जितना मैं आज की डेट में फेच कर सकती हूँ? नो मैम। नो। सो इन दैट केस डेफिनेटली आई वुड लाइक टू इंक्रीज माई प्राइसेस जितने मैं मैक्सिमम कर सकती हूँ अपनी मार्केट की सेंसिटिविटी देखते हुए, ठीक है? मैं अब 5 लाख का फोन तो मैं नहीं बेच सकती क्योंकि मैं ब्रांड वैल्यू भी देखूंगी, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कंसिडरेशंस, लेकिन स्टिल जो एप्पल है वो स्कीमिंग द क्रीम, जो हम आगे वाले चैप्टर्स में करेंगे, वो स्कीमिंग द क्रीम पे चलते हैं कि शुरू में पैसे ले लो, इसलिए मोबाइल फोन्स बाद में सस्ते हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें बाद में सस्ती हो जाती हैं। जैसे i3 है, अगर आपका i3 प्रोसेसर कितना सस्ता हो गया, जब आया था कितना महंगा, अभी i5 है, i7 है। सो जैसे ही कोई नया प्रोसेसर आता है, जैसे ही कोई नई इस तरह की टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज आती है, जब पहले LED लाइट्स आई थी बहुत महंगी थी,
now it has become comparatively reasonable. तो we can see that इन केसेस में ज्यादातर चीजें सस्ती होती हैं। तो इन जब चीजों का हम ब्रेक इवन देखते हैं तो ब्रेक इवन में हमारी कोशिश रहती है कि हमारा जितना जल्दी रिकवर हो जाए, ब्रेक इवन जितना जल्दी आ जाए। और अगर हमारी कोई ऐसी प्रोडक्ट है, पेन है या कोई ऐसी चीज है, हमें पता है कि चलते ही रहना है, उसमें क्या ऐसा ब्रेक इवन आना है, तो उसका ब्रेक इवन हम थोड़ा सा लंबा भी कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल टेलीकॉम कंपनीज है, वो अपना ब्रेक इवन थोड़ा लंबा भी ले सकती हैं, क्योंकि लोगों को डेटा तो चाहिए होगा, स्पेक्ट्रम खरीदना है तो स्पेक्ट्रम कहाँ चला जाएगा, स्पेक्ट्रम तो वही रहेगा ना, ऐसे तो नहीं कोई आ सकता अंदर कि आज मेरा मन करके मैं बैठ गया। दे हैव टू बाय द स्पेक्ट्रम, बहुत बड़ी बहुत ज्यादा रेगुलेशंस है। एयरलाइन कंपनीज है, वो अपना ब्रेक इवन थोड़ा बड़ा कर सकती हैं, पर टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज अपना ब्रेक इवन छोटा रखती है, क्योंकि कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो खत्म हो गया। अब एयरप्लेन वालों को ये तो पता है ना कि लोग प्लेन में ही उड़ेंगे, रॉकेट में तो उड़ना शुरू नहीं कर देंगे, है ना। तो वहां पर इस तरह की कंपटीशन नहीं आ सकता है, और अचानक से कल कोई अपनी दुकान तो नहीं ले आएगा ना कि 2 प्लेन रख लेगा, आ जाओ मेरे प्लेन पे। सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, तो दे कैन इंक्रीज देयर ब्रेक इवन एनालिसिस पॉइंट, बट नॉट एवरी कंपनी। देन मार्कअप एंड टारगेट रिटर्न, अगेन ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है कि वो कितना मार्कअप रखना चाहते हैं और कितना टारगेट रिटर्न रखना चाहते हैं। डेफिनेटली एक स्टैंडर्ड रिटर्न जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हर बिजनेसमैन देखता है कि अगर मैं कुछ भी ना करूं और ये मार्केट से पैसा उठाऊं, अगर मैं कहीं और इन्वेस्ट करूं तो कंपैरेटिवली कितना पैसा मुझे मिल जाएगा, उतना रिटर्न वो मिनिमम लेकर चलते हैं। तो ये कुछ कोस्ट से रिलेटेड पॉइंट्स थे। देन कंपटीशन, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट इग्नोर, ये सारी चीजें टैंडम में चलती हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक चीज को देखते हैं, प्रोपोर्शन अलग हो सकता है कि किसी कंपटीशन को आप ज्यादा देख रहे हो या कम देख रहे हो, कोस्ट को आप ज्यादा देख रहे हो कम देख रहे हो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड ये 5 के 5 उसके कोड्स हैं, यू नो, 5 पिलर्स हैं, इन 5 पिलर के ऊपर प्राइसिंग होती है, किसी एक पिलर को भी यू कैन नॉट इग्नोर। अब आपको ये देखना है कि वट एवर प्रोडक्ट यू आर सेलिंग, आइदर यू आर इन ए मोनोपोली पोजिशन, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की बात करें, दिल्ली में या तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है इधर टाटा कर रही है, तो थोड़ी सी मोनोपोली में हो गया। ऑफ कोर्स ये पब्लिक यूटिलिटी है तो गवर्नमेंट का थोड़ा कंट्रोल है, बट स्टिल मोर और लेस दे आर इन मोनोपोली। जैसे मेट्रो है, अगर रिलायंस चला रही है, अगेन वो पब्लिक यूटिलिटी में, इसलिए गवर्नमेंट वहां पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती है, बट स्टिल दे कैन फिक्स देयर प्राइसेस। जैसे आपको पता हो नेशनल हाईवे में आजकल प्राइवेट कंपनीज हाईवेज बनाने लगी हैं, टोल टैक्स लगने लग गए हैं। 20 साल पहले इस तरह के टोल टैक्स नहीं होते थे, 25 साल पहले नहीं होते थे। नाउ बाद में ये आया कि भाई जब लोग गाड़ी, जो लोग सड़कें यूज कर रहे हैं वो कौन यूज कर रहे हैं, कारें, दे आर द पीपल हु कैन अफोर्ड टोल टैक्स। तो व्हाई गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग इन दिस थिंग, आप अपने आप को चेंज करो, टोल टैक्स लोगों से लो, ये सड़क का खर्चा लोग ही देंगे जो कारें चला रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने टोल टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। अब वहां पर उसकी कहीं ना कहीं मोनोपोली टाइप्स हो जाते हैं, वो ऑफ कोर्स उनको टेंडर जीतना होता है, बट स्टिल देयर इज अ मोनोपोली, राइट। फिर मोनोपोलिस्टिक में जैसे हम ओटीटी की बात करें, थोड़े से डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं और कभी नहीं भी हैं। प्यूरिफायर्स की बात करें, वो भी हो सकता है। तो ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ओलिगोपोली में थोड़ी कम फर्म होती है, मोनोपोलिस्टिक में थोड़ी ज्यादा फर्म्स होती हैं। ये अलग अलग प्रोपोर्शन है, और प्योर कंपटीशन में बहुत ही ज्यादा कंपनीज होती हैं। ये तीनों में नंबर ऑफ फर्म्स के हिसाब से प्राइसिंग चार्ज होती है। ओलिगोपोली में जैसे कह दीजिए 3 या 4 कंपनीज होंगी, मोनोपोलिस्टिक में थोड़ी 10-15 कंपनीज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम मोबाइल फोन्स की, ब्रांडेड मोबाइल फोन्स की बात करें तो मोनोपोलिस्टिक में आ गया। ओलिगोपोली में हम बात करें तो अगेन ये हाँ जी, और हम एयर प्यूरिफायर की बात करें, एसी की बात करें, हर कंपनी तो नहीं बना रही है, राइट, कुछ एक कंपनीज हैं जो बना रही है। और प्योर एयरलाइन इंडस्ट्री किसका पार्ट होगी? बेटे वो डिपेंड करता है कि हम कितनी दे रहे हैं। वो ओलिगोपोली का ज्यादा लग रही है मुझे रादर देन मोनोपोलिस्टिक, क्योंकि कम ही है, हैंडफुल ही है ना, 5-7 ही तो है। यस मैम। इंडियन की बात करें, मोनोपोलिस्टिक में मोबाइल फोन्स ज्यादा लगते हैं कि कंपैरेटिवली ज्यादा आ गए हैं, तो मोनोपोलिस्टिक की तरफ थोड़ा मूव कर रही है, राइट। वो अलग बात है कि पॉपुलर है या नहीं है। पॉपुलर हमारे दिमाग में 3-4 आते हैं, पर अगर आप सस्ती की रेंज की जाओ तो कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा मिलते हैं, तो ये बीच में स्विफ्ट करता रहता है ओलिगोपोली मोनोपोलिस्टिक। प्योर कंपटीशन तो बिल्कुल रिक्शा वाले, ऑटो, ये प्योर कंपटीशन का हिस्सा है। अरे किसी ऑटो पे बैठ जाओ, किसी रिक्शा पे बैठ जाओ, भगत सिंह नहीं उतरोगे, तो वो आपका प्योर कंपटीशन है, राइट। देन चैनल मेंबर्स आपके, ये 4th कंपोनेंट है। चैनल मेंबर, सॉरी 5th कंपोनेंट है, 4th है ये, एक मिनट, 5th कंपोनेंट है, लास्ट कंपोनेंट है कि आपके चैनल मेंबर्स।
कि आप देखिए, जरूरी नहीं है, मैंने पहले भी बताया था कि हम इस चीज को आजकल फॉलो नहीं कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो। आजकल हम डायरेक्ट गाने बेच रहे हैं, राइट। लेकिन हमने डी मार्केटिंग भी कर दी है, हमने री इंटरमीडिएशन भी कर दिया है। री इंटरमीडिएशन मतलब फ्लिपकार्ट ही अपना होलसेलर खुद बन रहा है, खुद ही कर रहा है, वो बीच में डाल रहा है, ठीक है, बीच में उसने अलग से वेंडर नहीं रखा हुआ। एप्पल्स है, वो री इंटरमीडिएशन का केस है कि अब वो गाने डायरेक्ट खरीदता है, तो नई तरह का एक फॉर्मेट आ गया कि कंपनीज, म्यूजिक कंपनीज एप्पल वालों से कॉन्टेक्ट कर रही हैं, या विंक हो गया या सावन सॉन्ग्स था। अब ये नई तरीके के बीच में रिटेलर्स कह दो आ गए हैं, ठीक है, होलसेलर डायरेक्ट बीच में से खत्म हो गए हैं। तो अलग अलग तरह के मॉडल्स चल रहे हैं, लेकिन जो भी प्राइस डिसाइड होता है वो इन सबकी कंसेंसस से डिसाइड होता है। ग्रे मार्केट भी होती है, कई बार कोई होलसेलर होता है, उसको अलाउड नहीं होता वैसे रिटेल करना, क्योंकि रिटेलर पे नुकसान होता है, बट कुछ कर जाते हैं, उसको ग्रे मार्केट का हिस्सा बोल देते हैं। ऑफ कोर्स वो थोड़े से सस्ते दाम पे देगा, हम लेते हैं, ऐसे कुछ एक होलसेलर होते हैं, पर हो सकता है अगर किसी रिटेलर को पता चल जाए इस तरीके से, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं कर सकते वो, तो कंप्लेंट भी हो सकती है उनकी। अब ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में चैनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वहां पर कंपनी सेट करके रखती है कि अच्छा ये वाला पर्टिकुलर मेरा प्रोडक्ट सिर्फ ऑनलाइन रिलीज होगा, अच्छा ये वाला मेरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिर्फ ऑफलाइन रिलीज होगा। या जब ऑनलाइन ऑफलाइन में वो 15 महीने, 10 महीने, 2 महीने, वट एवर दे डिसाइड अपॉन, डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट, उसके बाद ही ऑनलाइन अवेलेबल होगा। तो ये सारी चीजें चैनल मेंबर्स के साथ डिसाइड करते हैं कि वो प्राइसिंग, अदरवाइज वो कहेगा मैं क्यों खरीदूं तुम्हारा प्रोडक्ट, सारे तो वहीं जाएंगे। सो यू अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन। तो यहाँ पर उन सबको अच्छा कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, कितना नहीं दे सकते हैं, वो भी एक रिटेलर सोचेगा अच्छा मार्जिन इतना है ना, मैं अपना मार्जिन 2% कम कर लेता हूँ, पर सारे कस्टमर मेरे पास आएंगे। सो देयर शुड बी सम स्टैंडर्ड, इससे नीचे कोई नहीं देगा। तो वो एक जो सारे डिसीजन होते हैं, दोज ऑल डिसीजन कंपनी हैज टू टेक while taking into confidence with their other channel members also। ठीक है, तो ये 5 मेन प्राइस कंसिडरेशंस थी जिसके बेसिस पर आपके प्राइसेस सेट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये पढ़ाऊंगी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, कि कौन कौन सी बेसिक हम स्ट्रेटजीज यूज करते हैं प्राइसिंग को सेट करने के लिए, उसके बाद हमारा प्राइसिंग खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क टिल नाउ, एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस, you can ask me। No, ma'am, thank you। कुछ भी, anything you think कि अभी थोड़ा और इस पे क्लैरिटी चाहिए, या we need to discuss it more, or you want to add something whatever we have discussed so far, if you want to share